Now, welcome friends in the series of classical mechanics. And now, today in this lecture, we will discuss the examples of constant motion again in detail. So, in previous lecture, we will study about constant, that is the limitation on the motion of a particle or a system of particles. ठीक है, जो भी लिमिटेशन इम्पोज होगी पार्टिकल के मोशन पर या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर, वो आपकी होती है कांस्टेंट। तो मैंने 3 एग्जांपल्स वहाँ पे आपको लिखवाए थे, एक रिजिड बॉडी को लेके, एक बीड का एग्जांपल मैंने दिया था, और गैस मॉलिक्यूल्स का भी मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात कर लेते हैं एग्जांपल्स को, और आपको थोड़ा सा और विजुअलाइज करवाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको कॉन्स्टेंट थोड़ा सा और यहाँ पे क्लियर हो। So this is lecture number 2. So this is lecture 2. The topic is example of constraint. तो पहला एग्जांपल हम लोग रिजिड बॉडी का ले लेते हैं, काफ़ी सिंपल हो जाता है वो। सो फर्स्ट एग्जांपल विच वी विल टेक, that is the example of rigid body. So let's suppose this is your a rigid body, and let's suppose this is ith particle, this is jth particle, and the distance between ith particle and jth particle is k, some constant k. This is point O, which is fixed, and the distance from O to the jth particle is the position vector rj. पोजीशन वेक्टर को हम लोग r से डिनोट करते हुए आए हैं, तो इसको मैंने बोला rj फॉर द jth पार्टिकल, और इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ri फॉर ith पार्टिकल. So what we are concluding, so let me write, a rigid body is the system of particle such that, so what we are studied, such that the distance between any pair of particles, कोई भी आप एक पेयर ले सकते हो, मैंने आई और जे लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, any pair of particles, any pair of particles is constant, will be constant. ठीक है, so this distance will be constant. Okay, and the motion of a rigid body, the motion of a rigid body is constant, और इस बॉडी, जो रिजिड बॉडी मैंने ली थी, इसका जो मोशन है वो मैंने कंस्ट्रेंट कर दिया है. ठीक है, क्योंकि हम कंस्ट्रेंट के एग्जांपल देख रहे हैं, तो मैंने इस बॉडी के जो मोशन है उसको कंस्ट्रेंट कर रखा हुआ है बाय द इक्वेशन
by the equation Ri vector minus Rj vector, which is k constant. Okay? That is when position will be changed of a rigid body, so distance between the any pair of particles will be remains unchanged. Hence, the pair Ij over all this distinct over all this distinct points of the particle forming a body. So this is a language which I had written. It is very easy because rigid body का हम एग्जाम्पल पहले ही लेक्चर में दे दिया था, तो यहाँ पे बस थोड़ा सा उसको और विजुलाइज करने की कोशिश करी गई. ठीक, बाय द डायग्राम. सो मॉड ऑफ आर आई वेक्टर माइनस आर जे वेक्टर विल बी अ कांस्टेंट. ठीक है, रिजिड बॉडी में डिस्टेंस आपकी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी, फिक्स रहती है, एंड यू विल ऑलरेडी नो. ओके, आपको पहले से ही पता है. ठीक, क्योंकि डिस्टेंस बदल जाएगी तो फिर वो रिजिड बॉडी नहीं रह जाएगी. समझ रहे हैं? डिस्टेंस अगर वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट नहीं रहा, तो वो रिजिड बॉडी नहीं रह जाएगी. सेकेंड एग्जाम्पल, if distance become variable, so this is the example of deformable bodies. So what is deformable bodies? Let's suppose this is the deformable bodies which is I am outlining. So this is deformable bodies, and let's say this is the point P on the deformable bodies, and this is the point Q on the deformable bodies, and by the motion of this body, when this body is in motion, then these points can be changed, can be vary, because this is not a rigid body. Because this is not a rigid body, so distance can be changed. तो P और Q के बीच की जो डिस्टेंस है वो मोशन के दौरान चेंज हो सकती है, बिकॉज दिस इज नॉट अ रिजिड बॉडी. रिजिड बॉडी में ये जो चीज़ें थी, जो डिस्टेंस थी वहाँ पे कांस्टेंट थी, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होगी, वेरिएबल होगी. ओके, तो इसमें क्या लिख सकते हैं? लेट्स सपोज इज अ फंक्शन ऑफ टी. टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो जाएगी, बिकॉज दिस इज डिफॉर्मेबल बॉडीज. The deformable bodies are that whose size and shape can be changed. अब आपको समझ में आ गया होगा. ऐसी बॉडी जिसका साइज और शेप चेंज होता रहता है, उनके पार्टिकल्स के बीच की जो पोजीशन होगी वो भी चेंज होती रहेगी, वो भी क्या होगी? वेरिएबल होगी. ठीक है, तो यही लिखना है हमें कि इन द डिफॉर्मेबल बॉडीज the distance between any pair of particles remains variable. So distance between any pair of particles in this system remains variable as per the time. If any doubt will arise, please ask through the comment section.
So this is the second example of constraint. Now example number third. अच्छा, इसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? डिफॉर्मेबल बॉडीज की इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? डिफॉर्मेबल बॉडीज की इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? सपोज दैट ये बार बार स्क्रीन थोड़ी सी ब्लैक हो जा रही है बिकॉज ऑफ द लाइटनिंग इशू, so please manage. Suppose the deformable bodies now I think it is now clear. Suppose that the deformable body is changing in time according to a certain prescribed function of a time t. डिफॉर्मेबल बॉडीज अपना जो है टाइम के अकॉर्डिंग फंक्शन ऑफ टी एफ टी के अकॉर्डिंग डिफॉर्मेबल बॉडीज चेंज हो रही है. ठीक है, डिफॉर्मेबल बॉडीज है तो अपना साइज एंड शेप डिफॉर्म कर सकती है, सो वो चेंज हो रही है टाइम के अनुसार. तो जो उसका मोशन है, उसकी जो इक्वेशन है वो कैसे दी जाएगी? देन इट्स मोशन, जैसे रिजिड बॉडी का जो मोशन है वो कुछ इस तरीके से दिया गया कि मॉडुलस ऑफ आर आई वेक्टर माइनस आर जे वेक्टर विल बी कॉन्स्टेंट. तो यहाँ पे कैसे दिया जाएगा? इट्स मोशन इज गिवन बाय आर आई वेक्टर माइनस आर जे वेक्टर. ठीक, दीज आर द टू पार्टिकल्स, these are the position vectors of two particles of the deformable bodies. Their distance is a function of t which is variable. ठीक है, तो रिजिड बॉडी में ये कांस्टेंट होता है, यहाँ पे डिफॉर्मेबल बॉडीज में ठीक जी आपके पास वेरिएबल हो जाएगी. ठीक है, थर्ड इज पेंडुलम. एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम लोग सिंपल पेंडुलम का. तो यहाँ से अब आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली कांस्टेंट क्या है. ठीक, तो हम लोग बात कर लेते हैं मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम. द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इन अ वर्टिकल प्लेन. वर्टिकल प्लेन में हम लोग सिंपल पेंडुलम का मोशन देखते हैं. सो कुछ पेंडुलम आपका कुछ इस टाइप का होता है. दिस इज पॉइंट ऑफ, इट इज फिक्स एंड हेयर यू हैव अ बॉब. ठीक, यहाँ पे आपके पास एक बॉब होता है और यहाँ पे पेंडुलम इस तरफ मोशन भी करता है और इस तरफ मोशन भी करता है. तो एसएचएम टाइप का मोशन होगा. सपोज जब यहाँ पे इस तरीके से मोशन हुआ तो यहाँ पहुँच गया, और जब यहाँ पे पहुँचेगा तो इस बैकवर्ड मोशन करेगा. ओके, एंड लेट्स सपोज जब यहाँ पे था तो यहाँ पे एंगल थीटा बना रहा है, और ये जो डिस्टेंस है बॉब की ओ से वो एल होगी, दैट इज अ फिक्स. तो कांस्टेंट हमारा क्या हो गया? एल. हमने ये वाले डिस्टेंस फिक्स कर दी है, और ये वाले डिस्टेंस फिक्स करने की वजह से ही ये जो पेंडुलम है वो ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है. ठीक, इफ दिस डिस्टेंस इज नॉट फिक्स तो हो सकता है मोशन कुछ और तरीके से होता, बट यहाँ पे ये ओ है और ओ के अलोंग ये वाली डिस्टेंस फिक्स किया, तभी अब ये ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है. ओके, और जब ऐसे हो जाएगा मतलब यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट होगा, सो दिस इज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. तो मोशन की पोजीशन, मोशन का स्टेट क्या होगा? जब यहाँ पे ऐसे ऐसे मोशन करेगा तो वो मोशन का स्टेट होगी, और जब यहाँ पे ऐसे ऐसे मोशन करेगा दैट इज अ मोशन. बाकी ये जो पोजीशन है ए इज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यहाँ पे कोई मोशन नहीं हो रहा.
So the motion of the simple pendulum require, सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है वो क्या रिक्वायर करता है? रिक्वायर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, एक्स एंड वाई। अगर आप पोलर में बात करना चाहते हैं तो, और इन पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा, ठीक है। जब आप उसके किसी एक पॉइंट की बात कर रहे होंगे तो एक्चुअली क्या होगा कि आप या तो आर मतलब प्लेन में या मतलब पोलर में बात कर रहे होंगे या तो कार्टेशियन में बात कर रहे होंगे, ठीक। सो अगर आप ध्यान से देखो तो बॉब फ्री नहीं है। बॉब मूव कर सकता है फ्रीली मूव नहीं कर सकता, ठीक है। बॉब फ्री नहीं है, ठीक। बॉब फ्री नहीं है क्यों? क्योंकि यहाँ पे एल जो है वो एक कांस्टेंट का काम कर रहा है, बिकॉज इट इज फिक्स। तो अब जो बॉब है, ठीक है, जो बॉब है ये जो बॉब अटैच है यहाँ पे इस क्या कह सकते हैं इसको, इस वायर से, ठीक है, इस वायर से या इस रॉड से, जो भी है वायर से, ये जो बॉब अटैच है ये फ्रीली मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ये जो डिस्टेंस है एल फिक्स है, सो ये कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज योर कांस्टेंट, बिकॉज जो ये डिस्टेंस एल है, ठीक है, इस कांस्टेंट के अंदर ही अब बॉब मूव करेगा, ठीक। इस कांस्टेंट के ही अंदर अब ये बॉब मूव करेगा। तो चूंकि डिस्टेंस एल फिक्स हो गया तो अब यह बॉब ऐसे से मूव करेगा, और जब यहाँ पे पहुंच जाएगा तो ये वाली डिस्टेंस भी एल होगी, एंड दिस विल बी अ डिस्टेंस एल। सो ड्यूरिंग द मोशन या ओवरऑल ड्यूरिंग द मोशन दिस डिस्टेंस विल बी कांस्टेंट, ठीक। चाहे जहाँ पे भी हो आप, दिस डिस्टेंस विल बी कांस्टेंट बिकॉज इट इज अ कंस्ट्रेंट। ओके, आई होप दिस इज नाउ क्लियर। हियर द मोशन, here the motion of bob is not free, but it takes place, under constraint, the distance L, of the bob is remain constant। L तो आपका कांस्टेंट ही रहेगा। सो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी? इस मोशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी? कांस्टेंट आपका L है तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी L स्क्वायर, ठीक है। या L की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ वी विल डिस्कस फोर्थ एग्जांपल। जिसको भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व आउट करूँगा। बट आई थिंक मैं सब कुछ अभी लिखवा रहा हूँ, फिगर के थ्रू समझा रहा हूँ, तो अभी चीज़ें क्लियर हो। एंड दिस इज, अभी ये सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन ही चल रहा है। तो अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं स्पेस में। अभी तक हम लोग प्लेन में चल रहे हैं या स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, ठीक। अब बात करते हैं थोड़ा सा स्पेस में क्या हो रहा है, ठीक। तो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्पेस, तो स्पेस अभी के हम लोग R3 ले लेते हैं। R3 मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस ले लेते हैं। सो कंसीडर, अब इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान समझिएगा। कंसीडर अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्पेस, ठीक है। इस जो एग्जांपल है इसको थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। सो कंसीडर अ पार्टिकल इज मूविंग इन स्पेस, इट रिक्वायर्स 3 coordinates, to explain position of particle
of a particle at any instant। ठीक, अगर पार्टिकल आपका स्पेस में मूव कर रहा है तो उसकी पोजीशन को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, एक्सप्लेन करना है, तो कम से कम आपको 3 कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे एट एन इंस्टेंट। तो लेट्स सपोज हम लोग R3 में मूव कर रहे हैं। सपोज दिस इज x एक्सिस, दिस इज z एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। तो लेट्स सपोज हम एक स्फीयर ले लेते हैं। सो वी हैव टेकन ए स्फीयर। हमने एक स्फीयर लिया और स्फीयर के अंदर पॉइंट ले लिया। एक पार्टिकल ले सपोज स्फीयर के इनसाइड है, दिस इज R। एक पार्टिकल जो इसके सरफेस पे है, दिस इज P। और एक जो इसके आउटसाइड है, दिस इज Q। तो तीनों पार्टिकल की मोशन की बात करेंगे, ठीक है। एक पार्टिकल जो मोशन कर रहा है इनसाइड द स्फीयर, एक पार्टिकल जो मोशन कर रहा है एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, और एक पार्टिकल जो मोशन कर रहा है आउटसाइड द स्फीयर। ओके, ठीक है। तो हम स्पेस में है तो हम तीनों केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो रेडियस है सपोज A, सो रेडियस ऑफ स्फीयर विल बी A। तो पहला केस ले लेते हैं कि जब मोशन ऑफ पार्टिकल हो रहा होगा, द मोशन ऑफ पार्टिकल inside the sphere, inside the sphere of radius A is given by। तो जो स्फीयर के इनसाइड में है उन पार्टिकल जो मोशन है वो कैसे दिया जाएगा। स्फीयर की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर। बट एक्चुअली क्या हो रहा है, हम लोग इक्वल टू का साइन नहीं लगा सकते, बिकॉज कि पार्टिकल आपका इनसाइड द मोशन कर रहा है, ठीक है। आर इज द पॉइंट, आर इज द पार्टिकल विच इज इनसाइड, ठीक, विच इज इनसाइड। तो यहाँ पे लेस और इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जब भी मैं इक्वेशन लिखूंगा तो इसका मतलब ये है कि स्फीयर में जो पार्टिकल्स हैं, जो उनका मोशन है वो इनसाइड दिस स्फीयर जा रहा है, ठीक, वो इनसाइड दिस स्फीयर है। तो जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने लिखी तो पार्टिकल क्या हो गया, पार्टिकल का जो मोशन होगा वो कंस्टेंट हो गया, पार्टिकल का जो मोशन हो गया कंस्टेंट हो गया। तो अब पार्टिकल का मोशन कैसे कंस्टेंट हो गया कि पार्टिकल जो यहाँ पे हैं स्फीयर के वो इनसाइड ही यहाँ पे मोशन करेंगे, वो ना तो सरफेस पे आएंगे और ना ही आउटसाइड जाएंगे। पार्टिकल को हमने कंस्टेंट किया, पार्टिकल के मोशन को हमने कंस्टेंट किया थ्रू दिस इक्वेशन, ठीक। तो लेस और इक्वल टू ए स्क्वायर है, सो पार्टिकल विल बी मूविंग इनसाइड दिस स्फीयर, सो दिस इज अ कंस्टेंट। लेट्स सपोज द मोशन ऑफ द पार्टिकल on the surface of the sphere। तो कंस्टेंट क्या होगा, on the surface of sphere is given by, तो वहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाए, ठीक। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखी, इसका मतलब ये है कि पार्टिकल जो है स्फीयर के, ठीक है, पार्टिकल जो है स्फीयर पे वो सरफेस पे मूव कर रहे हैं, ना तो इनसाइड मूव कर रहे हैं ना तो आउटसाइड मूव कर रहे हैं। तो ये वो पार्टिकल का मोशन है जो सरफेस पे मूव कर रहा है, ओके। सो दिस इज द अनदर कांस्टेंट। तो यहाँ पे कांस्टेंट हुआ और अब वही पार्टिकल जो है वो सरफेस पे मूव कर रहे हैं, ना तो अंदर मूव करेंगे ना तो बाहर आउटसाइड जाएंगे, ओके। कब कहेंगे मोशन ऑफ द पार्टिकल आउटसाइड दिस स्फीयर, आउटसाइड दिस स्फीयर, तो आप समझ ही गए होंगे। तो मोशन ऑफ द पार्टिकल outside this sphere, yeah, which is outside the sphere is given by x square plus y square plus z square will be greater or equal to a square। तो जैसे ही मैंने ये वाली इक्वेशन इम्पोज करी, ठीक है, ये वाली इक्वेशन आपके सामने लिखी, तो आप समझ गए हैं कि पार्टिकल का जो मोशन हो रहा है वो आउटसाइड द स्फीयर हो रहा है, ना कि सरफेस पे और ना ही इनसाइड।
सो दिस इज अनदर कंसेप्ट, ठीक है, दिस इज अनदर कंसेप्ट. सो दिस 3 gases arises in space. So this is some example of constraint. आज मैंने आपको constraint के example यहाँ पे दिखाए. So from next lecture we will study degree of freedom. So next lecture we will study degree of freedom and generalized coordinate. ठीक. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए. और क्लासिकल मैकेनिक्स के अगर आपके पास एक प्रॉपर नोट्स होंगे तो आगे आपको किसी भी एग्जाम को लेके प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी. जैसे CSIR नेट JRF का ये सब टॉपिक है, तो आप एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, या तो आप प्रॉपर नोट्स कहीं से प्रिंट आउट करवा लीजिए, या तो बना लीजिए, ताकि एट द एग्ज़ाम टाइम पे, अगर आप MSc फर्स्ट ईयर में भी एडमिशन लिए हैं तब की मैं बात कर रहा हूँ, सो एट द एंड टाइम जब आप नेट JRF देने जा रहे होंगे तो आपके पास कंटेंट अवेलेबल होगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं फेस होगी. वरना आप इधर उधर फिर अपने नोट्स ढूंढते हैं और फिर वो मिलते नहीं हैं और फिर आपको समझ में भी नहीं आते. तो आप अपने से नोट्स बनाइए और प्रॉपर आपके पास नोट्स होगा तो ठीक रहेगा. तो ये हमने डिस्कस किया आज कंस्टेंट. तो हमने एग्जाम्पल ऑफ कंस्टेंट देख लिए हैं. फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस डिग्री ऑफ फ्रीडम, और थोड़ा सा हम लोग और जनरलाइज करेंगे, ठीक है, और जनरलाइज करेंगे. अभी तक हम लोग सिर्फ नॉर्मली देखे अभी हम लोग सिर्फ थ्री डायमेंशन में है, अब हम लोग n डायमेंशन की बात करेंगे, थोड़ा सा और जनरलाइज करेंगे अपने कॉन्सेप्ट को, ठीक है. तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे आप छोटे क्लासेस में थे तो रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ाते थे, फिर थोड़ा सा बड़े तो प्लेन में आ गए, फिर थोड़ा सा बड़े तो 3D में आ गए. तो अब हम लोग MSc में है तो हम जनरलाइज पढ़ेंगे. कोई भी चीज़ MSc में आप जनरलाइज ही पढ़ोगे, n डायमेंशन की बात करोगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए.